अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके बाटापुर पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक शख्स जान बच, जबकि उसका साथी दोस्त जो था वो मौजूदा तौर पर बच गया। पुलिस ने अब तक क्या तहकीकात की हैं, कितने मुल्ज़िमान को हिरासत में लिया गया है, वर्सा इस कत्ल के हवाले से क्या कहते हैं, क्या कोई उनकी दुश्मनी चली आ रही है या कोई लेन देन का तनाज़ा है, और ये बढ़ते हुए कत्लों की जो वारदातें हैं लाहौर में, हर साल 400 से 500 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। इन बढ़ते हुए कत्ल के पीछे क्या महरिकात हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। शहर में बढ़ती हुई कत्लो गारत के बायस जहाँ पर शहरी जो हैं वो परेशान हैं, वहीं पर जिन लोगों के प्यारे और अजीज हैं वो ऐसी कत्लो गारत के अंदर चल जाते हैं, उनको भी सरापा एहतजाज है। हाल ही में बाटापुर के इलाके में एक वाक़या पेश आया जहाँ पर घुरकी अस्पताल का मुलाजिम घर ड्यूटी ख़त्म करके आ रहा था कि रास्ते में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया, और कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी अब तक मुल्ज़िमान का सुराग भी नहीं लगाया जा सकता। गिरफ्तार होना तो दूर, सुराग भी नहीं लगाया जा सकता। और जो मकतूल है उसके वालिद ख़ुद महकमा पुलिस में कई दहाइयों तक नौकरी कर चुके हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया और ये जो पुलिस का बढ़ता हुआ इस तरह का रवैया है कि कत्ल के मुकदमात में भी संजीदगी नहीं दिखाई जाती, इसके ऊपर उनका क्या कहना है। मकतूल के दीगर अहले खाना और मुदई हमारे साथ मौजूद हैं, उन तमाम से जानते हैं। लेकिन पहले मकतूल के वालिद जो ख़ुद इस महकमे को कई दहाइयों तक सर्व करने के बाद रिटायर हुए, उनसे जानते हैं। चाचा जी, एक बहुत ही अफसोस की बात है कि आपका जवान बेटे को कत्ल कर दिया गया। चाचा जी, सब तो पहले याद दसना कि तुसी महकमा पुलिस च कितना सा नौकरी की? मैं 60 साल करते हैं। 60 साल? किहड़े 60 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂ 40 ਸਾਲ 43 ਸਾਲ 43 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਡੀ ਹੀ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਸਾਦੋ ਨਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੇਟ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 4 8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਘਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 3 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਕਤੂਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਪਟਾ ਦੇਈਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਨਕਾਤਾਂ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਆਵਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵਾਕਾ ਵਕੂਆ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੁਖਬਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਮੁਖਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਐਸਐਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਚੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, CCTV ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਫੜਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੇਸ ਫੱਟ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਵਾਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੜੀ ਸ਼ੌਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਘੁਰਕੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ? ਵਕੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਵਕੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਬਲ ਡਿਊਟੀ ਸੀ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਗਿਆ। ਜੇ 2 ਵਜੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, 8 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਨੇ ਗੇਟ 2 ਠੀਕ ਹੈ
ਉਰਲੇ ਗੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਗੇਟ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੋਰਲੇ ਗੇਟ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਉਰਲੇ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ? ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗਰਦ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਟਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲੇ? ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗਜ਼ ਦਾ ਫਾਸਲਾ। ਅੱਛਾ, 100 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ, ਰਸ਼ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਸੀ, 8:15 ਵਜੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ 8 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਈਕਲ ਐਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਿਆਦਾ ਫੋਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਵੱਜਾ ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਰਸਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਧਰ ਕੈਮਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪਿਆ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੌੜ ਕੇ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਆਸਫ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਨੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, 302 ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਛਡਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰੇ ਕੂਮਰੇ ਦੇਖੇ, ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਕੈਮਰੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਦਈ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ 2 ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਆ ਜਾ ਕੋਲ ਹੈ
अगले खोल लिया, फलाना नहीं टकरिया, वो दूजा खोल लिया, वो खोल के जिन्हें जो कि पुलिस पूरी तामन कर दी। हाले तक कोई शनाख्त नहीं हो सकी कि कौन अजे मुलजिम है। तक उन्होंने ये नहीं सानू फोन करके दसिया भी मुलजिम फड़िया गया, देखो कौन है कितों का है, इसकी शनाख्त करो। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾर्ड ਵਗੈਰਾ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਉੱਠਿਆ ਤਕੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੇ ਖਤਮ ਦਵਾਇਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਲੀਏ ਸਨ, ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਰਿਹਾ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ 40-43 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੌਜ 'ਚ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲੂਮਾਤ, ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲੂਮਾਤ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, DP ਸਾਹਿਬ, SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹੋ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਗਿਆ। नहीं, अभी तक कोई पता नहीं चलिया हैगा। थाने जाते हो, पुलिस की कहती है? थाने जाने वो कैमरे बस खिला के देखी दे ने, बस ये कह रहे हैं बस लागे मुलजम का पता चल गया, बस थोड़ी देर और तावन साढ़े नाल करते ने। जिवें तुहाडे वालिद साहब कह रहे हैं कि ज़्यादातर कैमरे तो खराब ने, तो फिर किहड़े कैमरे पुलिस तुहानूं विखा रही है? पुलिस सानू कैमरे दुकाना ते लगे ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ दिखा रही है, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ। और किधर 2 कैमरे ने अपना बड़ा चलो खैर ਕੁਰਕੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨੇ? ਉਹ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨੇ। तो कोई शक शुक होएगा सी, तुसी को पुलिस ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਬਸ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 4 बेटे। 4 बेटे। ए वाले बेटे का कितना नंबर सी? चौथा। शादीशुदा सी? जी नहीं। तो शादी वगैरह करनी सी हाले? हाँ जी। कितने अरसे बाद? एतवार वाले दिन मंगनी करनी सी ओदी। कुड़ी वगैरह फाइनल कर ली हाँ सी? जी। रिश्तेदार हैं जी गैर? गैर। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕੈਸਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਧੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਮਾਂ ਆ ਕੇ ਸਰਾਸ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਲੇਕ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਨੇਕ ਮੁੰਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਇਆ? ਕਰਨੀ, ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਕੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਪੈਣਾ ਕਣਾ ਉੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਂਝ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਂਝ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਬਹਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ।
ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਹੋਈ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ इंज माँ जी बगैर किसी वजह तो इब्तदाई तौर पे यही है कि बगैर किसी वजह तो हाँ, कत्ल करते हाँ की जी, कहोगे किहो हाँ। जिहा इंसाफ चाहिए? ਸਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਨੀ ਆਕਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਅਸੀਂ ਬੇਹਨਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਾਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਹੁਕਮੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾਂਗਾ ਉਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਆਇਆ ਸਨ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਦੱਸੋ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਤਲੋਗਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਨਵੀਸ ਆਏ ਨੇ 6-7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ असल मुलजम जेडे ना वो फड़े जान। बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के वालिद और दीगर रिश्तेदारों की भाई और वालदा की गुफ्तगू सुन रहे थे। शहर में हर साल कम से कम 400 से 500 अफराद कत्ल किए जाते हैं। चलानिंग रेशो अगर पुलिस की देखी जाए तो वो इंतहाई कम है जिसकी वजह से ना सिर्फ आला अफसरान जो है वो बरहमी का इजहार करते हैं बल्कि अभी जब नई क़यादत आई है लाहौर पुलिस की तो उन्होंने आते साथ ही सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर तशवीश का इजहार किया कि चलानिंग रेशो जो है वो इंतहाई कम है। चलान जब नहीं होंगे मुलजमान को सज़ा नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से एक जो निज़ाम है वो उसके अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ जब आ जाता है। और आप जैसे मकतूल के वालिद की गुफ्तगू सुन रहे थे कि कई रोज़ गुजर जाने के बाद कल नक्शा नवीस जो है जिसने आके नक्शा बनाना है मौका बनाना है जिसके बाद उसको एक ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके बाद तमाम चीज़ें जो हैं उसके मुताबिक चल रही होती हैं तो वो यहाँ तक है। उनका कहना है ना इनकी किसी से दुश्मनी है ना ऐसा कोई लेन देन का तनाज़ा है लेकिन उसके बावजूद भी इनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। और CCTV कैमरे पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ख़राब होने की वजह से बेशतर केसेस के अंदर मदद जो है वो पुलिस को नहीं मिल पाती जिसकी वजह से मज़ीद ताक़ीद जो है वो मुलज़मान की गिरफ़्तारी में नज़र आती है। नौ तैनात SSP ऑपरेशन लाहौर मुस्तनसर फ़िरोज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये पिछली दफ़ा लाहौर में SSP ऑपरेशन तैनात हुए तो उन्होंने मुख्तलिफ हेड्स जो थे बनाए थे और उसके अंदर इस तरह से उनको अलहदा किया था कि कौन सा कत्ल किस वजह से हो रहा है दुश्मनी की वजह से हो रहा है गैरत के नाम पे हो रहा है या मुख्तलिफ वजूहात जिनकी बुनियादों पर कत्ल होते हैं वो वजूहात जो थी वो वजह ना जो था उसको डिटरमिन किया जाता था। अभी भी अगर रवां साल की बात की जाए तो 350 से ज़्यादा अफराद जो वो कत्ल हो चुके हैं और ये सिलसिला रुकने को नहीं आ रहा और हर शख्स यही मुद्दई जब गिला करता दिखाई देता है कि कत्ल के पीछे जो मुहरिकात हैं
उसको तलाश करने में बहुत टाइम गुजर जाता है, बहुत टाइम जो है वो लग जाता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर वो पुलिस के खिलाफ जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। जिस केस के ऊपर आज प्रोग्राम करें इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे सर एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि जब भी नया ऑफिसर आता है वो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज बनाता है, आपने डाटा ऐसा कंपाइल करना शुरू किया था जिसमें ये पता चल सके कि वजह अनाद क्या है। अभी भी सुनने में यही है कि 350 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो कत्ल हो गए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है अफराद कत्ल हो रहे हैं। मुद्दई इस वजह से भी सरापा एहतजाज हैं कि पुलिस होने वाले जो ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं उनको एक तो प्रीएम्प्ट करने में नाकाम है, दूसरा जब ये वाक़या हो जाता है तो उसके बाद भी मुद्दइयों से अच्छा सलूक नहीं किया जाता। क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना जो नुक्ता नज़र बयान कर सकूँ। इस साल लाहौर में अभी तक जो है वो 357 मर्डर के केसेस हो चुके हैं। जैसे आपने कहा कि जो उसका वजूहात जानने की जरूरत है कि मर्डर क्यों हुए, मेरे ख्याल है कि जो क्राइम है वो एक सोशल डिजीज़ है। तो जैसे डॉक्टर मरीज़ का इलाज करने से पहले उसका डायग्नोसिस करता है कि उसकी जड़ तक पहुँचा जाए, इसी तरह अगर हमने क्राइम प्रिवेंट करना है उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका डायग्नोसिस करके इस बात तक पहुँचे कि ये जुर्म क्यों हुआ। जो मल्टीपल रीज़न्स हैं, जो मेन रीज़न्स होती हैं ऑर्डिनरली, उसमें ऑनर किलिंग हमारे माशरे में होती है, पैसे के लेन देन पर मर्डर हो जाता है, एट द स्पॉट हो जाता है, कुछ पुरानी दुश्मनी पे कत्ल हो जाते हैं, ज़मीन के डिस्प्यूट पे मर्डर हो जाते हैं। अब हम ये करने जा रहे हैं कि इससे पहले भी ये एनालिसिस हो चुका हुआ है, हम इंशाल्लाह ताला इस एनालिसिस को रिवाइटलाइज करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन मर्डर्स की वजूहात क्या थी और जो प्रिवेंटेबल मर्डर्स हैं। अगर हमें पता है कि एक इलाके में 2 फ्रीकैन का डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम इस्लामी कार्रवाई कर सकते हैं, FIR दे सकते हैं, इवन लोगों को डिटेन भी कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन लीगल जो उसकी कमी नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर डायग्नोसिस हमारा ठीक होगा तो इंशाल्लाह ताला हम इसको ज़रूर एड्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा 2 और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके साथ कनेक्टेड है। हम जब लॉस ऑफ लाइफ पे उम्र फोकस करते हैं तो प्राइमरली हमारा फोकस सिर्फ मर्डर्स पे रहता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हम भी वो डाटा कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर में जितने लोगों ने सुसाइड की उनका भी डाटा एनालाइज आप करें और जितने लोग एक्सीडेंट में अपनी जान से गए उसका भी डाटा आप जरूर एनालाइज करें। तो आप ये जान के हैरान होंगे कि ये जो दोनों नंबर्स हैं, और एक्सीडेंट का तो मुझे आई एम श्योर कि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है तो मर्डर से 3-4 गुना ज़्यादा होगा। सुसाइड की रेशियो भी बहुत ज़्यादा होगी जो कि नॉर्मली अननोटिस चले जाता है, बिकॉज जब वो सुसाइड हो जाती है तो पुलिस भी शायद उसका डाटा कंपाइल नहीं करती। जी, उसका 174 की कार्रवाई हो जाती है, लोग FIR करवाने में इंटरेस्टेड नहीं होते और उसमें फिर पोस्टमार्टम के बाद वो प्रोसीडिंग डिफरेंट एक लीगल दफ़ा के तहत कंप्लीट की जाती है। तो हम इंशाल्लाह ताला इस तमाम वजूहात की जो है वो डायग्नोसिस करेंगे और ये इंशाल्लाह आफ्टर वीक हम दोबारा बैठेंगे, हम आपसे शेयर भी करेंगे, क्योंकि उसमें मेरा ये ख्याल है कि जहाँ पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी है वहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि हम लोगों को भी इसके बारे में आगाही दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोड एक्सीडेंट की बात करें तो वो लास्ट टाइम जब मुझे याद है कि लाकर साहब सीटीओ थे तो एक डाटा था कि 90% जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं उनकी डेथ हेड इंजरी की वजह से, तो उसका इलाज सिंपल हेलमेट की एनफोर्समेंट। तो इस तरह की बात अब आपको पता है कि यहाँ इस शहर में मेरे नॉट रॉन्ग 6.4 मिलियन व्हीकल्स हैं जिसमें 90% मोटर बाइक्स होंगी, उसमें तमाम पे शायद एनफोर्समेंट उतना कारगर हथियार नहीं है जितनी अवेयरनेस है। लेकिन जिस तरह आपने ये भी फरमाया कि हेलमेट जो है उससे हेड इंजरी बचाई जा सकती है और फिर डेप्थ रेशियो जो है वो कम की जा सकती है। इसी तरह अगर मर्डर की बात की जाए तो अगर डी वेपनाइजेशन की जाए जो नाजायज़ असला लाहौर में बहुत ज़्यादा है, अगर उसके खिलाफ जिस तरह हैदर अशरफ साहब के दौर में असले के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की गई, आपको नहीं लगता अगर घर घर में जो नाजायज़ असला मौजूद है अगर उसके खिलाफ कोई कैंपेन की जाए, बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए तो कत्लों की वारदातों को भी उसी तरह कम किया जा सकता है जैसे हेड इंजरी? डेफिनेटली किया। देखिए उसमें जैसे मैंने कहा कि हम इसीलिए इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं कि हम ये स्टडी करें कि किस इलाके में मर्डर्स होते हैं, उनका कोई पैटर्न स्टडी करने की कोशिश करें। एक है इंडिविजुअल 2 लोगों की लड़ाई और मौके पे मर्डर हो गया, जो ज़ाहिर बात है कि हमारे माशरे में होता है, लेकिन अगर एक तवातर के साथ एक ही पैटर्न पर वारदातें हो रही हैं तो उनको प्रिवेंट करना बिल्कुल पॉसिबल है। डी वेपनाइजेशन उसका बड़ा ही इफेक्टिव टूल है। उसके साथ साथ जो बाकी प्रिवेंशन के हथियार हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 2 फ्रीकैन में दुश्मनी है, एनमिटी है, भी आप लोगों ने बहुत सुलह भी करवाई जा सकती है, प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जा सकता है। और तीसरा साथ ये कि देखें लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से मेरे ख्याल है कि जितनी साइंटिफिक इंटरवेंशन लाहौर शहर में की गई हैं तो जितनी, लेकिन इसमें ये भी तो है कि आपने इतना प्लान बनाया कि थानों के अंदर किस थाने के अंदर नफरी ज़्यादा होनी चाहिए, कहाँ पे क्राइम ज़्यादा है वहाँ पे नफरी ज़्यादा देते हैं गाड़ी वहाँ, लेकिन जैसे ही ऑफिसर चेंज होता है लाहौर से वो तमाम जितनी उन्होंने एक्सरसाइज की होती है वो खत्म हो जाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो होती ही नहीं है।
हम इस अनोमली को एड्रेस करने के लिए कर रहे हैं कि हमने इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और स्टैंडिंग ऑर्डर हमारे पास एक बड़ा अच्छा टूल है जिसके लिए हम तमाम इस किस्म के इनिशिएटिव्स को डॉक्यूमेंट करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी जो मौजूदा हिसाब इन्होंने ऑपरेशनल गाइडलाइंस के नाम से एक जो है वो सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू की हैं। हमारा ये ख्याल होगा कि हम इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए और सस्टेनेबल बनाने के लिए जो आप इंडिकेट कर रहे हैं वो ऑपरेशनल गाइडलाइंस और स्टैंडिंग ऑर्डर्स का सहारा लें, ताकि एक चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो, और डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर वो उसको चेंज करने के लिए एक और स्टैंडिंग ऑर्डर इशू करना पड़े ताकि वो लोकली उसको एलिमिनेट ना किया जा सके। तो इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके, जैसे मैं कह रहा था कि लाहौर एक ऐसा शहर है कि अगर आपको टेक्स्ट बुक आप पढ़ेंगे तो मॉडर्नाइजेशन पुलिसिंग में कैसे होती है, तो उसमें यही होता है कि एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो जिसमें ANPR फंक्शंस हो, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हों, रिस्पांस के लिए अलग हो, इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग हो, फिर इन्वेस्टिगेशन में भी जेंडर क्राइम का अलग हो, मर्डर का अलग हो, CIE अलग हो। तो ये एक ऐसा बिल्कुल में आइडियल सेटअप है कि अगर हम सिर्फ इसको अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर सकें तो इंशाल्लाह ताला हम लाहौर के मसाइल को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कम। कैप्टन साहब, जैसे भी आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि लाहौर में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी जिस केस के ऊपर बाटापुर के केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर मुद्दई कहता है कि मुतअद्दिद दफ़ा में सेफ सिटी ले जाएगा लेकिन सारे कैमरा खराब हैं। अब लाहौर के अंदर 8000 कैमराज लगने थे जी 2016 से सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं और अभी तक सारे कैमरा जो है एक्टिव नहीं है। 70 से 60% कैमराज ऑपरेशनल होते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए आप लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बहुत बड़ा टूल है, किसी भी दहशतगर्दी के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव टूल रहा है। इसी तरह कत्लों के अंदर और ये जो दुश्मनियाँ हैं उसके अंदर भी इनसे बहुत से लोगों की शनाख्त हुई, लेकिन आज तक कैमराज ऑपरेशन नहीं, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ता है। इस केस में भी वो कहते हैं कि हम गए तो उन्होंने कहा कि जी बाटापुर घुरकी अस्पताल और फिर बनावा वाली रोड के ऊपर कैमराज जो ऑपरेशन क्यों नहीं आप इसके लिए कुछ करते? देखिए, मेरे ख्याल है कि सेफ सिटी बड़ा ही अच्छा, बड़ा इनोवेटिव, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और जो टीम वहाँ पे काम कर रही है वो बड़े अच्छे, ब्रिलियंट और प्रोफेशनल लोग हैं। इतना बड़ा सिस्टम है कि उसको मेरे ख्याल में मेंटेन करने के लिए हैजर्ड्स डेफिनेटली आते होंगे। मैं कि उसकी प्रिसाइज डिटेल से वाकिफ़ नहीं हूँ तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हमने आते ही मैंने भी और हमारे जो ऑपरेशन है हमने कामरान खान साहब जो CEO हैं उनसे मुलाकात की। मतलब सेफ सिटी इज़ ओपन फॉर अस, तो हमारा प्रोजेक्ट है, उन्होंने पूरे अपने को ऑपरेशन का यकीन दिलाया है। और आपको ये जान के भी खुशी होगी कि जो पहले हमारे कुछ ऑपरेशनल मैटर्स की मॉनिटरिंग हम यहाँ पे DG ऑपरेशन ऑफिस में कर रहे थे, वो उसका हम एक पैरेलल कंट्रोल रूम जो है वो सेफ सिटी में भी टाइम करने जा रहे हैं, ताकि जो कोलैबोरेशन है इसको डे टू डे बेसिस पे बढ़ाया जा सके। उसके साथ साथ कुछ जैसे आपने कहा कि कुछ जो ऑपरेशन के हमारे ऑफिसर थे उनका इशू ये भी आता था कि कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो FIR की बुनियाद पर डाटा अवेल कर सकता था, लेकिन ऑपरेशनल ऑफिसर को कुछ दुश्वारियाँ उसमें थी, वो भी रिमूव हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर एक वारदात होती है तो इमीडिएटली जाके कोई भी ऑफिसर SHO जो है वो उस वारदात को पेश कर सकते, जाके बाय द टाइम वो FIR रजिस्टर होकर तफ्तीशी अफसर के पास जाए और उस पर दोबारा काम शुरू करे, उस वक्त तक जो उसका स्पेड वर्क है वो हो चुका है। तो मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि उम्र जितने यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, अगर हम इसको एफिशिएंटली यूज़ कर सके इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ताला की मदद हमारे सामने हाल रही, तो डेफिनेटली हम इंशाल्लाह ताला इस सिस्टम को अच्छे तरीके से रन करने में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। शहर में होने वाले कत्लों की अगर वारदातों पर नज़र डाली जाए तो बहुत से ऐसे वाक़यात रहनुमा होते हैं जिसके अंदर गुस्सा ये क्लेम करते हैं कि उनको मालूम ही नहीं है कि किसने उनके प्यारे को कत्ल कर दिया, क्यों कत्ल कर दिया, और वो अपेरेंटली दुआइयाँ देते दिखाई देते हैं कि उनके बच्चों के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें भी आपने सुना कि मकतूल के वर्सा कहते हैं कि उनको मालूम नहीं है कि उनके बेटे को किसने कत्ल किया है, क्यों कत्ल किया है। हालांकि अगर माहिर कानून से बात की जाए तो वो हमेशा कहते हैं कि कत्ल के पीछे मुहर्रिकात लाजमी होते हैं, यानी वजह अनाद ज़रूर मौजूद होता है, और मकतूल के वर्सा को ये बात पता होती है। हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के वाक़यात जब रूनुमा होते हैं तो बज़ाहिर वजह जो गुस्सा होते हैं वो नहीं बता रहे होते, क्या ऐसा मुमकिन है कि बगैर वजह के कोई शख्स कत्ल कर दिया जाए? और
अगर गुरसा को ये मालूम हो कि उनके बच्चे को किसने कत्ल किया तो वो क्यों छुपाते हैं? डॉक्टर साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जब आपके पास कोई मरीज़ आता है तो क्या कभी आपने अपने प्रैक्टिस में ये देखा है कि कोई शख्स किसी को बगैर वजह के नुकसान पहुंचा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता बेसिकली। तो डिपेंड करता है, जैसे अभी आपने बात की कि वर्षा को ज़रूरी नहीं है कि पता हो, क्योंकि समटाइम्स अगर मेरी किसी से दुश्मनी है इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे माँ बाप को भी उसका पता हो या मेरे वर्षा को इसका पता हो। हाँ, लेकिन अगर हम कहें कि ज़हनी मर्ज हुआ है बग़ैर वजह के, बग़ैर वजह नहीं हो सकती, या तो इसकी मौरूसी वजह हो सकती है, कोई बायोलॉजिकल वजह हो सकती है, कोई साइकोलॉजिकल सोशल वजह हो सकती है। सेम इसी तरह कत्ल पे जाता है। बहुत से कत्ल हुए आए दिन कराची में, लाहौर में ऐसे कत्ल होते हैं जैसे मोबाइल स्नैचिंग पे हो गए, बैग स्नैचिंग पे हो गए, किसी ने मोटरसाइकिल लेनी है तो उसको गोली कर दी कि दे दो वरना मार देंगे, तो उसने अगर रेजिस्ट किया, उसने नहीं दिया तो इस पर एक झगड़ा सा यहाँ हुआ और गोली लग गई। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अगला जो ड्राइवर था, जो ड्राइव कर रहा था मोटरसाइकिल, उसको गोली लगी, पीछे वाले को नहीं मारी। तो वजह क्या मोबाइल छीना गया, क्या मोटरसाइकिल छीनी गई, क्या वॉलेट छीना गया, इनमें से तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर एक ने बग़ैर वजह के या तो है ना कि शादी पे कोई गया हुआ है और अगले ने फायर किया तो वो फायर गलती से लग गया, वो भी नहीं है। तो टारगेट हुआ, एक मोटरसाइकिल चल रही है, मोटरसाइकिल चलते हुए किसी और ने मारा, तो बग़ैर वजह के तो नहीं मारा होगा ना। तो अगर पेरेंट्स कह रहे हैं, वर्षा कह रहे हैं कि उनको नहीं पता, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन विदाउट अ रीज़न कोई किसी को मारता नहीं। उनकी मकतूल की वालदा से जब बात की तो उनका कहना था कि जब उनका बेटा कत्ल हुआ है उसके चंद रोज़ के बाद उसकी मंगनी होनी थी और फिर जल्द ही शादी भी होनी थी। आपको लगता है कि कुछ इस तरह की कोई इंटरफेरेंस हो सकती है, कोई इसके अंदर डिस्प्यूट चल रही हो और ये फैक्टर आ गया हो? अब अगर तो हम कहें ना कि लड़के की पसंद से शादी नहीं हो रही थी तो फिर लड़के को कहीं भागना चाहिए था या कुछ करना चाहिए था। लड़का तो शादी करने के लिए इसका मतलब तैयार था कि वो उधर है। अब लड़का चूँकि कत्ल हुआ है तो बात ऑफ कोर्स जाती है दूसरे जो लड़की है उसकी तरफ जाती है बात कि क्या पता उसकी तरफ से या उसको ना भी इल्म हो, शायद उसके रिवेंज में कोई थर्ड पार्टी हो जिसने ये रिश्ता ख़त्म कराना हो, उसने कोई ऐसी हरकत की हो। क्योंकि जब सामने कोई चीज़ नहीं है तो हम कैसे मतलब हम कोई ना कोई मफरूज़े ही बना सकते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ हुई तो होएगी, बिकॉज वजह के बगैर नहीं हुई, वजह तो होएगी कोई ना कोई। ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि सिर्फ उस लड़के से किसी की दुश्मनी है, या जैसे वो कहते हैं कि जी क्योंकि आपने बताया वो हॉस्पिटल में काम करता था तो क्या पता कोई रिवेंज लेना चाहता हो, कोई बदला लेना चाहता हो, ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब मकतूल के वालिद ये कहते हैं कि उनकी कुछ अर्सा यानी 2010 में एक मसला हुआ था और उसके अंदर ये लोग जेल काट के आए हैं, लेकिन वो बाद में तकरीबन सुलह के करीब बात पहुँच चुकी है। तकरीबन 10-11 साल हो गए इस बात को। कोई अगर हम फॉर इंस्टेंस मान लें तो उनमें से कोई हो सकता है, तो 10 साल बाद कोई रिवेंज लेगा या हाँ क्यों नहीं ले सकता। देखिए ना, फॉर इंस्टेंस अगर आप कह रहे हैं कि 2010 में ये चीज़ हुई थी तो जो उस वक्त इतना वेल इक्विप्ड नहीं था या उस वक्त वो कोई इतना बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि अब हो गया वो स्ट्रॉन्ग और अब उसको मौका मिला है। बेसिकली उस वक्त मौका नहीं मिला, इस वक्त मौका मिल गया, कर दिया। जिस तरह हम कहते नहीं है कि एक रेप का केस है या सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस अक्सर ऐसे आते हैं कि लड़की ने पहले तो बोला नहीं और अब 10 साल बाद बोल रही है या 5 साल बाद या 6 साल बाद या ऐसे बोल रही है। क्यों? क्योंकि अब उसके पीछे कोई सपोर्ट है, इसलिए बोल रही है। और डॉक्टर साहब जब बुरसा ये बात करते हैं कि हमें हरगिज़ मालूम नहीं है, जैसे उसके वालिद साहब भी खुद ही बता रहे हैं कि उनकी ऐसे एक कत्ल के केस के अंदर वो लोग जेल काट के आए हैं और फिर वो कहते हैं कि हम किसी को नाहक भी नहीं खिंचवाना चाहते। कत्ल हमेशा लीड्स के ऊपर चलता है, यानी उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लीड्स होती है। बिल्कुल। जब कोई एक शख्स आपका बहुत करीबी इस तरह किसी वाक़े के अंदर कत्ल हो गया हो तो क्योंकि ये लोग पहले जेल काट के आ चुके हैं
तो ऐसा हो सकता है कि लोग खुद से रिवेंज लेने की खातिर पुलिस को उलझा के रखें और फिर ये बहुत कॉमन है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर उनका अपना प्यारा गया है तो ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि शायद पैसों की कंपनसेशन हो जाए, दूसरा ये उन्होंने खुद ही सोचा हो कि बदला लेना है, तीसरा ये कि वो भी शक में हो कि वो मतलब एक चीज़ को वो क्लियर करना चाह रहे हों कि वेदर वही हैं कि नहीं जिन पे उनको शक है, और चौथा ये कि शायद वो डर गए कि आगे पहले ही काटा हुआ, अब ये ना हो कि दूसरा भी चला जाए, अभी एक बेटा गया तो ये ना हो कि अब वो किसी दूसरे से भी हाथ खो जाए। तो ये सारी वजूहत जो हो सकती हैं, और ये ह्यूमन यानी तो ह्यूमन नेचर है कि हम सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन ही चाहते हैं ना, हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, उसके बाद हम कोई और काम करेंगे। जो आपकी बातों से मैंने आदत की, हर कत्ल के पीछे मोटिव लाजमी है, और मुर्सा को गायब कहीं ना कहीं पे शक, यानी अगर कंक्रीट एविडेंसेस के साथ वो उनको ना भी पता, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मालूम होता है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। माहिर नुसरात हमारे साथ मौजूद थे। सबसे पहले आपने मुर्सा की गुफ्तगू सुनी। मुर्सा का कहना है कि उनको हरगिज़ मालूम नहीं कि उनके बेटे को क्यों कत्ल किया गया है। उसके बाद हमने SSP ऑपरेशन लाहौर से बात की, तो उनका कहना है कि वो बहुत सा ऐसा डाटा कंपाइल कर रहे हैं जिससे आने वाले वक्त में ना सिर्फ कत्ल की होने वाली वारदातों को जो इस तरह की हो रही है उनको प्रीएम्प्ट किया जा सकता है, बल्कि जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है ताकि ऐसी दुश्मनियाँ जो चली आ रही हैं और उसके अंदर ख़तरात और ख़दशात मौजूद हैं कि नुकसान एक दूसरे को पहुँचाया जा सकता है। तो उनका कहना है कि उस चीज़ को उस तरह से एनालाइज़ किया जाएगा उस डाटे की बुनियाद पर ताकि कत्ल ना हो। हमारे नफ्सियात की आपने गुफ्तगू सुनी कि हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई वजह ना ज़रूर होता है, और कहीं ना कहीं इस कत्ल के केस में मुर्सा को ज़रूर कहीं ना कुछ मालूम ज़रूर होगा कि उनके बेटे को क्यों कत्ल किया गया है, लेकिन वक्ती तौर पे शायद जो मुल्ज़िम पार्टी है उसका खौफ हो सकता है, या फिर ये मज़ीद दुश्मनी को बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए ये खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन जैसे वो एक कहावत है कि कत्ल छुपाए नहीं छुपता, इसके मुलजमान भी पुलिस आज नहीं तो कल ट्रेस रूट कर लेगी, और फिर कानून का जो तरीक़ाकार है वो कानून हरकत में आएगा और उसके मुताबिक जो उनको सज़ा दिलवाने की भी कोशिश की जाएगी। आज के प्रोग्राम से टीम जमीन जाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी कराने के बाद।